Assalamu alaikum class. Yeah, we all fine. Uh, we resuming from where we left in our last session that was looking at business opportunities that have recently been on surface once the industries, organizations, the governments, the community, they are moving towards corporate environmental sustainability. And I have quoted a lot of examples from different industries. Some have been from the food industries, other have been from the renewable energy or energy sector. I've also brought examples from the fertilizer companies to present various perspectives on corporate environmental sustainability. Uh, we're also looking at many cases, many examples to see what is happening and how these companies been able to develop certain initiatives that correlate with the idea of sustainable future, but also to look forward to ways that future organizations could also adopt to such technologies and methodologies, methods, where they could also generate results. Uh, General Electric is not far behind. This is one of the leading electronics company, uh, an organization which is famous for its uh, design and innovation. It has been looking forward to green and reusable renewable energy options, and recently has used wind farms to produce electricity. The wind turbine depends on the design and weather conditions and geographic location, and therefore it has its own pros and cons. May further requires a lot of maintenance at the part of the developers. But General Electric, being an innovative company in the appliances and the electronics world, has been able to use IoT, Internet of Things, and its philosophy of twin digital twins producing electricity, where they be able to stimulate or maneuver the wind turbines with a lot of efficiency and be able to use remote access to Internet of Thing options, smart technology, and to sensors. They be able to monitor those technologies without minimum human intervention. Uh, because of this initiative, they be able to manage the electricity production better than they were doing in the last particular options, and their efficiency has increased. Uh, the morale of the story is many organizations have shifted towards artificial intelligence, other have shifted towards internet and smart technology, smart sensing to produce electricity, which was perhaps a troublesome area and requires a lot of deployment of human resources, technicians on the site. Those sites were remote and were hardcore areas, and therefore many people were reluctant to go there. Because of these technologies, they be able to manage it from remote places. Finally, as I promised, we will be looking at a Pakistani company in Engro, and it is regarded as one of the best in Pakistan as far as sustainability and social responsibility initiatives are concerned. But once we looked at corporate
environmental sustainability as a business case, यानी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज राइज कर रही हैं। तो अब इसको मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, ये अपॉर्चुनिटीज को इंटीग्रेट करने के लिए व्हाट दे वांट टू डू इज, आप देख रहे हैं कि स्ट्रेटजीज के साथ जोड़ रही हैं। So we are looking at future of organizational planning where the strategic integration is thing, and basically it calls for integrating your strategy with the ESG framework. Any framework that you're using like TDL or ESG, better is organizations now focusing on ESG strategy. Uh, you basically are developing strategic goals for sustainability, और आप कोशिश कर रहे हैं कि आप मेजरेबल टारगेट्स सेट करें, क्लियर हो मेजरेबल टारगेट्स। जैसे आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक बेस्ड टारगेट सेट कर रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके वाले से रिपोर्टिंग कर रही हैं। यानी आप कोशिश कर रहे हैं कि आप मॉनिटर कर रहे हैं और देखें टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और ऐसा करने के लिए आपको अपने पार्टनर्स यानी सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स और गवर्नमेंट, इनके साथ ही क्यों ना पार्टनरशिप्स करनी पड़े, वो आप पार्टनरशिप डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज याद रखिएगा ये इकोसिस्टमिक अप्रोच है जिसमें आपने कोशिश करनी है कि आप कंप्रीहेंसिव आइडिया जनरेट कर सके। सो देयरफॉर इट रिक्वायर्स फॉर अ कोलैबोरेटिव एंड कॉल्स फॉर लीडरशिप, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के ये लीडरशिप ऑप्शंस ले रहे हैं। इसी तरह ये ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रही है, ranked as one of the top organizations which are basically working for sustainability since long। यानी एक विजनरी कंपनी है जो कि पाकिस्तान में सस्टेनेबल और रिन्यूएबल और इन्वायरमेंटल फोकस्ड स्ट्रेटेजी के साथ काफी अरसे से काम कर रही है। इंटरनली तो हम इसको पाकिस्तान में काफी दफा रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, यानी पाकिस्तान में ये सोशल कॉज के हवाले से CSR अवार्ड्स विन कर चुकी है। और इसका जो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल फोकस है उसके हवाले से कोई दो राय नहीं है। बट एंग्रो हैज बीन आल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज वेल। अब देखें यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल इम्पैक्ट जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, UNGC प्रिंसिपल्स के हवाले से, उस हवाले से भी इसको काफी हद तक रिकग्नाइज किया गया है। और आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट, सोशल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ इस पर फोकस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम में मैं इसका जिक्र कर रहा था कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ वेरी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू ये टारगेट्स को अचीव करने की कैपेबल हुई है, दैट इज द एंग्रो फाउंडेशन। और एंग्रो फाउंडेशन ने अपने लिए गोल्स सेट किए हैं, स्ट्रेटेजिक गोल्स, इनका जिक्र आप पिछली स्लाइड्स में भी देख रहे हैं कि उसमें एनवायरमेंटल फोकस गोल्स हैं, और उसमें खास तौर पर जो फोकस है वो कार्बन को कम करने का है, सर्कुलर इकोनॉमी, खासतौर पर प्लास्टिक और वेस्ट कम करने का है, और साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी को इम्प्रूव करने का भी है, या उसकी कंजर्वेशन के लिए काम करने का है। तो आप देख रहे हैं कि फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स कर रही है, वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, एंड कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स इस हवाले से एक्टिविटी कर रही है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कंपनी इज इट्स फाउंडेशन है, which is basically the Engro Foundation. It was established way back। अभी तो लोग शायद सस्टेनेबिलिटी के मतलब जानते भी नहीं थे जब ये इनिशिएटिव स्टैब्लिश किया गया था। और उसका आइडिया भी ये था कि एंग्रो हैज अ वॉलंटियर फोकस ऑन एनवायरमेंटल एंड सोशल इल्स। यानी उसका ये नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट उसको फोर्स करे या फिर कम्युनिटी की डिमांड हो, बल्कि वो बहुत अरसे से डिस्क्रिशनरी या वॉलंटरी एफर्ट कर रही है, प्लान करके एक्टिविटी कर रही है ताकि
जो सोशल एनवायरमेंटल स्किल्स हैं वो इम्प्रूव किया जा सके। खास तौर पर उसकी एक बहुत ही प्रोफाउंड फोकस है अपने स्टेक होल्डर्स के हवाले से। याद है आपने स्टेक होल्डर्स के हवाले से भी डिबेट की थी कि हमने खाली सिर्फ स्टॉक होल्डर पे फोकस नहीं करना बल्कि स्टेक होल्डर्स पे फोकस करना। तो एंग्रे की ये खास बात है कि उसने अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पर जो उसकी सप्लाई लाइन के गिर्द हैं, आप उसकी फाउंडेशन के जो विजन है उसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि एंग्रो believes that they cannot manage the issues of all. So they developed a focused strategy where they're focusing just on communities living very close by or associated with their supply line, कि जहां से उनका रॉ मटेरियल आता है या जहां पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके इर्द गिर्द जो भी कम्युनिटी के इश्यूज हैं, एंग्रो उस पर फोकस करना चाहती है। That's why they are empowering communities alongside their supply line. Not bad. हम कह सकते हैं कि एंग्रो का विजन बहुत लिमिटेड है, बट बिकॉज वो डिलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट कर रही है, रियलाइजेशन के साथ कि डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी हो सकती है जब वो फोकस ग्रुप्स के ऊपर काम करें। Therefore, they are focusing just on their communities along their supply line. Therefore, it has been able to generate results. 17 different projects कर रही है, खास तौर पर environmental focus के साथ। They have a very diversified portfolio, but environmental stewardship, environmental effort करना उनकी प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है। खास तौर पर डिफॉरेस्टेशन कर रही है और कार्बन कम करने की कोशिश कर रही है और प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट को कम करने की कर रही है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी काम कर रही है। आप देख रहे हैं रिफॉरेस्टेशन, रिस्टोरेशन कर रही है उन एरियाज की जहां जहां जरूरत है। और इसका जो एंग्रो सर्कुलर प्लास्टिक प्रोग्राम है, दैट इज एन अवार्ड विनिंग प्रोग्राम है विद फोकस ऑन जीरो प्लास्टिक वेस्ट फ्यूचर इन पाकिस्तान है। तो चाहते हैं कि लीडर बने पाकिस्तान में प्लास्टिक के इस्तेमाल को जीरो लेवल पर ले जाने के लिए। दे आर प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग लॉट ऑफ लैंड है ताकि वो रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर सकें। और जो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से हम देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इंडस रिवर डॉल्फिन विच इज नाउ ऑलमोस्ट एक्सटेंट है, नियर टू एक्सटेंट है, उसकी कंजर्वेशन और उसकी रिस्टोरेशन पर काम कर रहे हैं। और फॉर दैट दे हैव पार्टनर्ड विद द WWF which is the consortium for endangered species, wild fauna and flora। प्लांट और एनिमल किंगडम में जो स्पीशीज जो है endangered हो गई हैं उसके हवाले से ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में काम करता है। उसके ताउन से उसकी पार्टनरशिप्स देखें, पार्टनरशिप हम जिक्र कर रहे थे कि हमने पार्टनरशिप्स करनी है कम्युनिटीज के साथ जो कि हमारे सप्लाई लाइन के साथ हैं, ग्रो कर रहा है। हमारे जो इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ जितनी भी ऑप्शंस मौजूद हैं उनमें से जो जो ऑप्शन हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के साथ इंटीग्रेट हो सके वहाँ हमने पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी है। तो ये जो कंसोर्शियम है WWF जो कि फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और वाइल्ड लाइफ के हवाले से बहुत सालों से एफर्ट कर रही है, उनको एज अ पार्टनर के तौर पर लिया है। और इंडस रिवर डॉल्फिन जो है उसकी कंजर्वेशन, उसकी लाइफ को बचाने के लिए कोशिशें कर रही है। तो इस लिहाज से अगर हम समअप कर सकें ग्रो की कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के एम्बिशन को, तो हम देख रहे हैं कि इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटीज, स्पेशली वुमेन पे फोकस किया है और कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन और लिफ्टिंग अप दी हेल्थ स्टैंडर्ड्स क्रॉस देयर सप्लाई लाइन उसके लिए काम कर सके। और they have been contributing a lot across different projects including हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का ओवरऑल डेब्ट रिलीफ फंड है उसमें भी कंट्रीब्यूट करती है, प्लस कोशिश कर रही है जॉब्स क्रिएट करे अक्रॉस द सप्लाई लाइन। इस लिहाज से भी उसकी एक अच्छी इकोनॉमिक
सपोर्ट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से कंट्रीब्यूशन है, एंड हैज बीन रिवॉर्डेड एंड रिकग्नाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। एशियन सस्टेनेबिलिटी रेटिंग से भी काफी हाई रैंक से चुकी है पाकिस्तान में, टॉप रैंक CSR लीडरशिप के हवाले से प्राइसेस विन कर चुकी है। और एंग्रो हैज अ क्लियर विजन, देख रहे हैं इसकी स्ट्रेटेजी का इंटीग्रल पार्ट है। वो समझते हैं कि पूरे एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को टेलर कर रही है, अपने प्रोसेसेस इस तरीके से मैनेज कर रही है। वंस यू पार्ट ऑफ द एंग्रोज ऑर्गेनाइजेशन, you basically are part of a visionary setup. You need to be visionary as well है। आप देख रहे हैं कि उनका जो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है उसमें आइडिया जनरेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग का मैकेनिज्म है, जिसको नाम है एनविजन। देयर एम्प्लॉइज आर टेकिंग ब्रेक थ्रू इनोवेशंस एज फार एज सस्टेनेबिलिटी इज कंसर्न, उस हवाले से और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और सोशल इम्पैक्ट के हवाले से ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडिया जनरेशन करती है। So it has a very comprehensive arrangement of things as far as the environmental sustainability is concerned. Uh, Looking at the evaluation of this module from the perspective of risks, this is also from the idea of the opportunities. हम देख रहे हैं sustainability eventually could translate into longer term returns, especially unprecedented climate change जो कि हो रही है, उसकी वजह से severe impact आ रहे हैं on communities, organizations, resilient organizations, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर बाउंस बैक की एबिलिटी है विद न्यू इनोवेटिव ऑप्शंस, इस हवाले से बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर रही है। Whenever there is an economic, social, and environmental crisis, these organizations are constantly looking for options, solutions. Therefore, the future is just not putting some money, आप उसके अंदर थोड़ा सा पैसा नहीं डाल रहे हैं, बल्कि लोग इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर के हवाले से एक बिल्डअप कर सकें, अपने आप को एक फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर प्रेजेंट कर सकें और अपनी गोल सेटिंग को एनवायरमेंटल फोकस फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर सकें, जैसे कि हम आगे जाकर देखेंगे ESG फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट कर रहे होंगे। इस बात से हम इजीली सेफली कह सकते हैं the future is all about resilient and sustainable organizations. Let's conclude our module number 2. And in the next module, we try to look at some of the models and frameworks of corporate environmental sustainability. और उसका आइडिया बेसिकली ये है कि हमने बाय और व्हाट के ऑप्शंस को तो देख लिया, लेकिन अब जाहिर है फ्यूचरिस्टिक मैनेजर्स का विजन का आइडिया ही होना चाहिए कि हाउ टू डू इट। तो वो जो हाउ वाला पार्ट है, मोस्ट लाइकली हमारे जो मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स हैं वो मैनेज करके, या वो हम एक मेथड या प्रोसेस दे रहे होंगे। और देयरफॉर इस हवाले से बहुत सारे मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स बिजनेसेस के लिए मौजूद हैं। टिपिकली लुकिंग एट कॉर्पोरेट मॉडल्स एंड प्रोसीजर्स एंड फ्रेमवर्क्स है। जाहिर है some places we need to go and look at some generalized environmental models as well। फिर देखेंगे उनकी लाइट में, उन ऑप्शंस की रोशनी में हमें हमारे पास बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे कौन से फ्रेमवर्क्स या मॉडल्स अवेलेबल है जो कि हमें गाइडलाइन भी दे सकें, जिनपे हम रहकर मॉनिटरिंग भी कर सकें और जिनकी वजह से हम अपनी जो आउटकम्स हैं उनको प्रोजेक्ट भी कर सकें और उस हवाले से थॉरो एविडेंस भी प्रेजेंट कर सकें, जिसकी ग्रोइंग डिमांड नजर आती है मीडिया में भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी और कंज्यूमर कम्युनिटीज की तरफ से भी। यानी हमें नजर आ रहा है ट्रू कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच लेकर चल रही है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हवाले से। और
सिर्फ वो दिखावा नहीं कर रही, झूठ नहीं बोल रही, बल्कि measurable, accountable results जनरेट कर रही है. So we're looking at these models from different perspectives. See you inshallah till the next time.